Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class, and today we'll continue with chapter number 3, that is meeting life challenges. And this is part 3 of this chapter. If you have not seen part 1 and part 2, you can check the links in the description box. So in the last 2 videos we discussed about the meaning and the nature of stress and about primary and secondary appraisals given by Lazarus. And in today's video we'll discuss about types of stressors and dimensions of stressors. Alright, so let's get started. So सबसे पहले let's see how many types of stressors are given in your book. There are 3 kinds of stressors which are given. First one is environmental stresses, second is psychological stresses, and the third one is social stresses. So सबसे पहले जानते हैं कि environmental stressors होते क्या हैं. So it is very simple. Stressors that are found in our surroundings, in our environment are called environmental stressors. तो मतलब अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत से environmental stressors हैं, like changing weather. मतलब आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है. गर्मी की वजह से इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो वो भी एक स्ट्रेसर है. इसके अलावा नॉइज़ कोई भी हो सकती है. अलार्म क्लॉक की नॉइज़ है या आपके आसपास कोई रैली है उसका नॉइज़ आ रहा है, तो ये भी एक स्ट्रेसर है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर. And besides this, another group of environmental stresses are catastrophic events or disasters such as fire, earthquakes, cyclones, floods, etc. Now, catastrophic events means events involving or causing sudden great damage or suffering. Means catastrophic events वो events होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान और दुख झेलना पड़ता है लोगों को, ठीक है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है. ओके. एंड इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर आजकल हम सब फेस कर रहे हैं वो है COVID-19, isn't it? And the stress that is caused due to all these environmental stressors is known as environmental stress. Okay? Now the second kind of stressor is psychological stressor. And these are the stressors that we generate ourselves in our minds. Means psychological stressors हमारी अपनी सोच या अपनी thinking होती है कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं जिसकी वजह से हमें stress हो जाता है, ठीक है. Like there are 4 kinds of psychological stresses which are given in your book, that is frustration, conflicts, internal pressures and social pressures. अब frustration क्या होती है? Frustration results from the blocking of needs and motives by something or someone that hinders us from achieving a desired goal. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लाइक आपको एक पार्टी पे जाना है और आपने नई ड्रेस लेनी है, ठीक है. आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप नई ड्रेस ले पाओ. पापा मम्मी जो हैं आपके वो आपको लेके नहीं दे रहे हैं. आपने किसी फ्रेंड से मांगी, वो भी नहीं दे रहा है, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गोल क्या है? नई ड्रेस लेना. और उसको गोल को अचीव करने के बीच में बहुत सी ऑब्स्टेकल्स आ गई हैं, ठीक है, मुश्किलें आ गई हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई है. आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, आपका गोल जो अचीव नहीं हो पा रहा है. दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन. ओके. So in simple words, the feeling of displeasure, discomfort and tension arising out of interference in the goal-directed behavior is commonly referred to as frustration. And आज की डेट में तो हमारी ज़रूरतें ही बहुत ज़्यादा हैं, और जब वो ज़रूरतें, जब वो नीड्स पूरी नहीं होती, वो गोल्स हम अचीव नहीं कर पाते, तो obviously it leads to frustration, right? So frustration should be accepted as a common part of life and it is inevitable. Inevitable means that is unavoidable. अब इसके बाद जो सेकेंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर हो सकता है वो है कन्फ्लिक्ट. नाउ कन्फ्लिक्ट्स में अकर बिटवीन 2 और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स और मोटिव्स. इनकम्पैटिबल मीन्स ऑपोजिट. मतलब कन्फ्लिक्ट किसकी वजह से होता है कि दो आपकी ऑपोजिट नीड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लूज वेट ऑल्सो एंड यू वांट टू ईट चॉकलेट्स ऑल्सो, जंक फूड ऑल्सो. तो अब यहाँ पे क्या है, आपके 2 नीड्स हैं. मतलब आपको वेट भी लूज़ करना है और आप चॉकलेट्स भी नहीं छोड़ सकते, जंक फूड भी नहीं छोड़ सकते. तो मतलब अब ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है आपके लिए कि करूँ तो क्या करूँ. अब जिम जाना छोड़ दूँ, एक्सरसाइज छोड़ दूँ, या फिर चॉकलेट्स खाना छोड़ूँ. सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन दैट कॉजेज स्ट्रेस. मीन्स इट्स लाइक अ डिलेमा फॉर यू. मीन्स आपको पता नहीं चल रहा है दोनों में से क्या चूज़ करें आप. ओके.
तो ये भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है, मतलब आपकी अपनी सोच की वजह से ही आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या डिसीजन लें, किसको चूज़ करें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है वो है इंटरनल प्रेशर्स। एंड इंटरनल प्रेशर्स स्टेम फ्रॉम बिलीव्स बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इनसाइड अस टू आवरसेल्व्स। मींस आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ही स्ट्रेस हो जाता है। लाइक मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी पिछले वीडियो में। लाइक कुछ लोग जो होते हैं दे बिलीव दैट एवरीथिंग शुड बी डन परफेक्टली, मतलब वो जो भी करें इट शुड बी डन परफेक्टली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं ना हो सकते। अब कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा कि वो हर चीज़ हर काम जो है परफेक्टली करे, तो मीन्स वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब पॉसिबल नहीं होगा तो वो डिसअपॉइंटमेंट होगी, अब डिसअपॉइंटमेंट होगी तो स्ट्रेस होगा ही होगा, ठीक है। तो इंटरनल प्रेशर्स जो हैं वो भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर हैं दैट लीड्स टू psychological stress. Now the last psychological stressor that is given in your book is social pressures, and social pressures may be brought about from people who make excessive demands on us. अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल प्रेशर मतलब हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस, सोशल प्रेशर मतलब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, ओके, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पीपल अराउंड अस। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बच्चों से, चाहे वो स्टडीज़ हैं चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो वो सोशल प्रेशर होगा, राइट। इसके साथ साथ टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चों से, स्टूडेंट्स से, राइट, तो वो भी एक सोशल प्रेशर होता है। So these were some of the psychological stressors due to which psychological stress arises. Okay. Now the third kind of stressor is social stressors. Social stressors collectively represent all those factors which can present in the society and have positive और negative impact on stress levels. Means social stresses हमारी अपनी society में present होते हैं जिनकी वजह से हमें stress हो जाता है. For example, culture, religion, education, family, etc. All these are social stressors. Okay. For example, social events like death or illness in the family, strained relationships, trouble with neighbors are some examples of social stressors, right? And the kind of stress that arises from these social stressors is known as social stress. And ये जो social stress है ये vary करता है from individual to individual. अब like party में जाना, friends के साथ घूमना, ये सब जो है आम लोगों को पसंद होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं they don't like going out with friends या party पे जाना उनको पसंद नहीं होता, तो वही situation उनके लिए stressful हो सकती है. So it varies from individual to individual. Okay. So these were the kinds of stressors which are given in your book, and now we'll move on to the dimensions of stressors. So dimensions करने से पहले let's understand कि dimension का meaning क्या होता है. Dimension is basically a part or quality of a thing or situation that is an effect on the way you think about it. Means किसी भी चीज़ या किसी भी situation का part या quality जो कि effect करती है आपकी सोच को, उसे हम dimension बोलते हैं. So there are 4 dimensions of stressors which are mentioned in your books, that is intensity, duration, complexity and predictability. So let's understand them one by one. So सबसे पहले intensity. Intensity means strength, means वो stressor आपके लिए कितना strong है. Means अगर ज़्यादा strong है वो stressor तो obviously उससे ज़्यादा stress होगा in comparison to अगर वो less strong है, right? Like if we take one example, like आपके exams days हैं तो वो stressful होते हैं सबके लिए, वो एक stressor होता है. तो अब वो एग्ज़ामिनेशन डेज़ जो हैं वो स्ट्रेसर जो है कितना सीरियस है आपके लिए. अगर आप पूरा साल पढ़े हो, मेहनत की है, नोट्स रेडी हैं आपके लिए, तो वो स्ट्रेसर की इंटेंसिटी जो होगी वो लो होगी आपकी. स्ट्रेस होगा आपको बट लो लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा आप में, राइट. एंड इन कंपैरिजन टू दिस, अगर आप पढ़े नहीं हो, आपके पास नोट्स नहीं बने हुए, राइट, तो उस स्ट्रेसर की जो इंटेंसिटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा होगी. मीन्स यू विल टेक दैट स्ट्रेसर सीरियसली एंड उससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा, राइट. सो दैट इज़ इंटेंसिटी. अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायमेंशन है दैट इज़ ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मीन्स एक्सटेंट, टाइम, कितने टाइम तक वो जो स्ट्रेसर है वो चलेगा, वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म स्ट्रेसर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर. ओके.
जैसे कि अगर हम दोबारा से एग्ज़ाम्स डेज़ की एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे कि एग्ज़ाम डेज़ हैं तो वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का स्ट्रेस रहता है। बच्चों को पता है कि एग्ज़ाम्स लाइक अगर टर्मिनल एग्ज़ाम्स की बात करें तो वो फर्स्ट टर्म सितंबर में आएगा और वो एक जो मंथ है या वो 15 दिन है वो स्ट्रेसफुल रहेंगे हमारे लिए। तो उसकी ड्यूरेशन 10 से 15 दिन रहेगी, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। और दूसरी तरफ अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस की बात करें तो जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके लिए स्ट्रेसर है जो लंबे समय तक चलने वाला है। मतलब आपको तब तक वो स्ट्रेस रहेगा जब तक आपके फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, राइट। Now the next dimension is complexity. Complexity means how much complicated the stressor is, whether it is less complex or more complex. Less complex means less complicated. वो stressor जो है कम complex होता है, like एक ही चीज़ से आपको stress है, like exams हैं तो वो एक stressor है जिसकी वजह से आपको stress हो रहा है, and you know कि आप पढ़ोगे तो definitely उसको clear कर लोगे पेपर को, ठीक है। दूसरी तरफ more complex means बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको पता नहीं चलता कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ से हो रहा है। मींस एग्ज़ाम्स का भी स्ट्रेस है, आपको पेरेंटल प्रेशर भी है, तो मतलब आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली आपको स्ट्रेस है किस चीज़ का। तो दैट सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, ओके। इसके बाद जो लास्ट डायमेंशन है दैट इज़ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी मीन्स सर्टेनिटी, whether the stressor is unexpected और predictable। अगर तो stressor जो unexpected है, आपने expect ही नहीं किया है कि वो situation आपके सामने आ जाएगी, तो मतलब अगर वो situation आती है आपके सामने तो वो ज़्यादा stressful होता है। लाइक अगर हम इस पेंडेमिक की बात करें, कोविड की बात करें, तो दैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेसर जो एकदम से आ गया और जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, राइट। एंड इसके ऑपोजिट जो है वो प्रिडिक्टेबल स्ट्रेस होता है। लाइक आपको पहले से पता है कि वो स्ट्रेसर जो है आने वाला है, वो सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, वो सिचुएशन हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। तो अगर वो प्रिडिक्टेबल है, अगर आपको पता है लाइक एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता है कि भाई इस मंथ जो हैं वो एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं, तो आपको पता है कि वो जो मंथ है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहने वाला है, राइट। तो दिस इज़ प्रिडिक्टेबिलिटी। सो आज के लिए इतना ही करेंगे एंड विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच विल डिस्कस अबाउट पर्सन characteristics and stress appraisal. Okay, so this is all for today and I hope you have understood everything. So see you in the next video. Till then, take care all of you. Stay home, stay safe, and thank you so much for watching.